And any doubt in A and B part? We have discussed A and B part ना? Exercise evaluate question में 50 पेज नंबर पे हमने A and B part डिस्कस कर लिया था. Any doubt? Raise your hand if you have doubt in A and B part. No doubt? Okay, now see long answer type question. पहले ऐसे करते हैं, मैं पीछे वाला जो ये था इसके नोट्स प्रिपेयर करवा देता हूं. आप लोगों ने ये असेस क्वेश्चन कर लिए जो 44 पेज पे है असेस क्वेश्चन. इसके पहले नोट्स भी कंप्लीट होंगे. हैव यू कंप्लीटेड? ओके, नाउ हेडिंग डालो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अपनी बुक ओपन कर लो 44 पेज नंबर पे. Heading is effects of electric current. सर रफ कॉपी में लिखना है. हाँ बेटा, एक बार रफ में कर लो, उसके बाद आप क्या करना, उसको उस पे कर लेना, फेयर में कर लेना. सर ठीक है, रीडिंग लेके उसके बाद आपने फेयर में करना है. Write down the heading effects of electric current. When current flow एंजल, वॉइस नहीं आ रही बेटा? एंजल, am I audible? Yes, sir. Am I audible? You're audible, but your voice is coming properly. बेटा ये आई थिंक आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, बिकॉज आपकी आवाज भी यहाँ पे इंटरप्ट हो रही है. अवनी, विभव, कोमल, ऑडिबल हूँ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Sir, can you repeat what you said because I went to bring my pen? सॉरी. Sir, can you repeat what you said in that notes because I went to bring my pen? नो प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर रहा हूं. इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, then electrons move in the wire which produces heating effect, magnetic effect and chemical effect. Now make the heading of heating effect. Write down the heading heating effects.
when electric charge move through the wire, the electrical energy ये चेंज किया है, उसमें फर्क था, इसमें प्रॉब्लम है, रेडिश नहीं था। When electric charge move through a wire, electrical energy is transferred to the atoms in the wire. Electrical energy is transferred to the atom in the wire, and when these atoms receive energy, they starts vibrating. When these atoms receive energy, starts vibrating. स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग करने के बाद क्या हुआ था, उसका टेम्परेचर हाई हो गया था, एंड गेट्स हीटेड अप, as the temperature of wire increases, beyond the surrounding temperature. Yes girl, Ayushi? सर आप when this के बाद वापस रिपीट करोगे क्या? I am repeating. When electric charge moves in the wire, electrical energy is transferred to the atom in the wire, and when atom receive energy, starts vibrating. Sir, Yes, yes beta. so repeat after electrical energy. Sorry Sir, you can repeat again. बेटा, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है। चैट बॉक्स में बेटा टाइप कर दो, मैं देख लेता हूं। Starts vibrating and wire gets heated up. As the temperature of the wire increase beyond surrounding temperature,
बेटा मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा साथ के साथ। Heat is given out which explains the heating effect of electric current. As the temperature of wire increases beyond surrounding temperature, heat is given out, which explains the heating effect of electric current. Is it clear? बेटा बिगनिंग से आप ऐसे करो, क्योंकि मैंने कहीं से देख के नहीं बोला तो वर्डिंग में डिफरेंस आ सकता है, तो आप किसी नोटबुक से उठा लेना, है ना, किसी की नोटबुक से पिक ही मंगवा लेना, इसके बाद मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। एग्जाम्पल कौन कौन से किए थे? माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, जो भी आपको 3-4 एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं वो लिख लो। एनी 3 और 4 एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिक टोस्टर हमने किया था, ओवन किया था, और एक गीजर किया था, तो 2-3 एग्जाम्पल लिख लो। अगर वो होगा ना तो उस वाले और उस वाले में रीस्टार्ट कर दो बस, वैसे अपडेट ये वाला कोई नहीं है, ये हो गया। एक बार सर ये वाला चेक कर लो। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब में मैंने एक फिलामेंट पढ़ा था, नेम क्या था उस फिलामेंट का? कौन से मटेरियल का फिलामेंट बना हुआ था वो? यस यस अवनी। Sir, tungsten filament. यस, टंगस्टन फिलामेंट। लिखो, नोट डाल के लिख लो, नोट, NOTE। When electric current passes through tungsten filament, नीचे वाला राइट डाउन कर लिया बेटा, नीचे वाला?
tungsten filament, its temperature rises up and in electric bulb लिख लो। यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना। When electric current passes through the tungsten filament in electric bulb, temperature rises up and emits light and heating energy. Light and heating energy. Is it clear? कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा टंगस्टन फिलामेंट से तो उसका जो टेम्परेचर है वो 1100 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से वो हीट अप होगा और लाइट और हीटिंग एनर्जी एमिट करना स्टार्ट कर देगा। इट स्टार्ट्स एमिटिंग द लाइट एनर्जी एज वेल एज हीटिंग एनर्जी। When electric current passes through tungsten filament in electric bulb, temperature rises up and it emits light and heating energy. बेटा हैंड रेज करो अगर आपने नोट डाउन कर लिया है। रेज योर हैंड। ओके, now next heading, magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Yes कोमल बेटा, yes कोमल। Sir, nothing. Okay, when current is passing through when current passes through a conductor, it behaves like a magnet and magnetic compass placed nearby it deflects. Placed near the wire
deflects, which shows the magnetic effect of electric current, which shows the magnetic effect of electric current. When current passes through a conductor, it behaves like a magnet, and a magnetic compass placed near the wire deflects, which shows the magnetic effect of electric current. Is it clear? Any doubt? Raise your hand if you have doubt. Note down this. Yes, Veer Verma. Then in electric bulb, you said that the tungsten heats up to 110 degrees Celsius. Yes. So, doesn't the glass break from so much temperature? ग्लास और जो है आप ये कह रहे हो कि वो ब्रेक नहीं होता? no sir, why does it not break? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्यों नहीं होता. Why does the जो गिलास जो आउटर कवरिंग जो गिलास की है वो ब्रेक डाउन क्यों नहीं होती? बेटा ये डिपेंड करता है. देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना उसके ऊपर वाली जो मतलब वो होती है जो गिलास होता है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कितना टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है. अब जैसे हमारे पास अगर वुडन की बात करें या कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होते हैं. तो ये क्या होता है, मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज है. ठीक है, तो जो वहां पे गिलास यूज किया जाएगा जहां पे इतना टेम्परेचर चाहिए, जहां पे इतने हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे जो गिलास यूज होगा ना वो अच्छी क्वालिटी का होगा. अच्छी क्वालिटी इन द सेंस मतलब उसमें मिक्सिंग होगी कि वो जो आपका टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सके. मिकुल, Thank you sir. मिकुल Yes, sir. बैकग्राउंड चेंज नहीं करना बेटा. डम्मी जो I आप have not changed. डम्मी बैकग्राउंड जो लगा रहे हो ना ये अलाउ नहीं है. सबने नोट डाउन कर लिया? रेज योर हैंड इफ यू हैव नोट डाउन. वेरी गुड. यस, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट का ही एक पार्ट है. इलेक्ट्रोमैग्नेट जब हमने डिस्कस किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि एक वायर होगी, कॉइल ऑफ वायर होगी, जब उसमें से करंट पास करेगा तो वो क्या करना स्टार्ट करेगी, वो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला था. बिकॉज इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट मींस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम उसको क्या बना रहे थे, मैग्नेट बना रहे थे. अ कॉइल ऑफ वायर, it is a coil of wire. It is a coil of wire wound around a piece of wound around a piece of
आयरन मीन्स जो आयरन का पीस है उसके ऊपर एक वायर जो क्या की हुई है, बाउंड की हुई है, एंड कनेक्टेड टू a electrical source of energy like cell or battery. It is a coil of wire wound around a piece of iron and connected to an electrical source of energy like cell. Next, we can increase the strength of electromagnet by increasing, पहले यहां तक लिख लो बेटा, so it is a coil of wire wound around a piece of iron and connected to a source of energy, electrical source of energy like cell, and we can increase the strength of this electromagnet first by increasing the number of turns, second or by increasing amount of electric current. ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स. जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी. और इफ वी डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, then strength of electromagnet decreases. So first we can increase the strength of electromagnet by increasing number of turns or by increasing amount of electric current. Note down this. नोट डाउन कर लिया बेटा? नेक्स्ट देखो, इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट. हमने इसको टेम्परेरी बोला था ना, बिकॉज जैसे ही हमने करंट का स्विच ऑफ करते हैं, करंट ऑफ करते हैं, तो वो क्या होता है, अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर लेता है. सो इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट. Because when we switch off
when we turn off the current, it loses its magnetic effect. जैसे ही करंट बंद हुआ तो इसने क्या कर दिया, अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर दिया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट. नेक्स्ट इसके यूजेस. इट इज यूज्ड इन washing machine, वैक्यूम क्लीनर, मोटर, टॉयज. हर जगह क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट. यस वीर. यहाँ पे ये प्रीमीटिंग दिखा रहा है ऊपर, रिमेनिंग टाइम, फिर ये अपने आप ही कॉल कट जाती है. हाँ बेटा, ये जैसे ही ये टाइम ओवर हो जाता है 40 मिनट का, तो आपकी क्लास जो है 40 मिनट की क्लास है. जैसे ही रिमेनिंग टाइम 0 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ओके बेटा. और बेटा एक चीज कनेक्शन प्रॉब्लम. नहीं, एक चीज और ध्यान रखना. अब से अगर आप व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप खोलोगे ना, जैसे ये आपकी क्लास 7 का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जब आप उस पे अपना जहां पे लिखा हुआ है DPSS क्लास 7, तो वहां पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेम आपकी जो जिस लिंक से आप ज्वाइन करते हो ना मीटिंग, पासवर्ड वहीं पे भी मिल जाएगा. ठीक है बेटा, समझ आ गया बेटा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है अपने चैट बॉक्स में, तो वहां पे भी आपका जो ग्रुप का इनविटेशन लिंक है, जो जूम इन मीटिंग का लिंक है और पासवर्ड है, वहां पे भी है. अगर बाय चांस आपको कभी मैसेज ना मिले तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो उस लिंक से. ठीक है बेटा. नाउ it is used in washing machine, vacuum cleaner, electric fans and toys. कल हम इलेक्ट्रिक बेल का करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल और वर्किंग ऑफ टेलीफोन. एनी डाउट? सबने नोट डाउन कर लिया बेटा? एनी डाउट? यस निधि, अपूर्वा, तन्मय, विभव, प्रीतम, कोई डाउट बेटा? नोट डाउन कर लिया ना सबने? अब यहां तक अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे. सबसे पहले आपने, अगर किसी ने नहीं किया तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट से, देन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. देन वो कंडीशन जो हमने की थी कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम की कंडीशंस क्या होनी चाहिए. देन यू हैव टू ट्राई दिस असेस क्वेश्चन, पेज नंबर 44. वो क्वेश्चन राइट डाउन. यस अवनी? Sir, the notes are over or they are still left? सॉरी, Sir, the notes are over or they are still left? नहीं स्टिल लेफ्ट है बेटा. आप ये देखो, हमारा एक तो ये पार्ट रह गया इलेक्ट्रिक बेल वाला, टेलीफोन, और एक सेफ्टी वाला. कल फिनिश हो जाएंगे ये. और आपके ये देखो क्वेश्चन भी हो रहे हैं साथ के साथ. यस
Sir, yesterday we discussed those short answers, so that we had to write in our notebooks. हाँ बेटा, वो जैसे ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। Oh, sir, I wrote it yesterday. कोई दिक्कत नहीं, अगर कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स पहले बन जाते हैं। अगर कर लिया, नो इट्स नॉट अ बिग इशू, आप जैसे भी कर सकते हो। आपको तो अंडरस्टैंड चाहिए कि आप कैसे उसको कर रहे हो। पहले मेरा प्लान ऐसा था कि इसको वो करवा देता, आपको मैं हैंड रिटन दे देता, तो आप एक दिन में उसको नोट डाउन कर लेते। लेकिन अभी क्या कि 3 डेज हमारे पास है, तो हम इसको धीरे धीरे आराम से समझते हुए नोट डाउन कर लेंगे। ओके बेटा? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, आपको मैंने 2 चैप्टर करवाए हैं। एक तो हीटिंग इफेक्ट वाला करवाया है, सॉरी हॉट एंड टेम्परेचर वाला, और एक ये। कोई डाउट हो इन दोनों चैप्टर्स में? यस गर्व अग्रवाल? सर मेरे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पहले वाले नोट्स नहीं लिखे हुए। बेटा किसी के पास है तो उससे ले लेना। एक उसने अपनी, उसका नाम क्या था बेटा, जिसने नोट्स के लिए बोला था? Sir, Nidhi. निधि बेटा? Nidhi? Have that. बेटा मैंने प्रीवियस नोट्स मांगे थे हॉट एंड टेम्परेचर से पहले, जो निखिल सर ने आपको दिए थे नोट्स, उनकी पीडीएफ है आपके पास? So that I have to see this. जिस किसी के